Hello students, how are you all? In agriculture, we will start unit 4th and our first topic of this unit is cell. Okay, let's start. There is a special branch of science that is called cytology. Okay, in this branch of science, we study about cell. You know very well, each and every living organisms like plant, animal and microorganisms. Okay, each and every living organism is made up of by cell. That's why we can say that cell is the structural functional and biological unit of the life. Simply we can say the life of living organism start from a single cell. Okay, समझ रहे हैं आप इस चीज को? जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं इन केस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स सेल fuses with female sex cell. Male sex cell is sperm and female sex cell is ovum. Okay, when they both fuse with each other, then they form a single complete egg cell that is called zygote. Okay, अब तक क्या हुआ कि zygote जो होता है ना, zygote show cell division process, and during cell division process single cell divides and form many cells. The group of many cells form tissue. Tissue make organ. Organ make organ system, and organ system make whole body. That's why we can say that our life start from a single cell. ठीक है, not our life. Each and every living organism's life start from a cell. That's why we can say that cell is the structural, functional and बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसको फंक्शनल इसलिए बोला है बेटा, यू नो वेरी वेल, सेल कंसिस्ट different kinds of cell organelles. Okay, each and every specific cell organelles show specific functions. Okay, in the body. ठीक है, जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया that occurs in a cell. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. It provides help to produce energy in the form of ATP. Okay, and you know very well, when we do when we do work, then we require energy. ठीक है, तो मतलब तभी बोला है कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प इन फंक्शनल एक्टिविटीज. ठीक है, और डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा इन अ बॉडी ऑफ एनिमल्स. मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, ब्लड सेल्स है. ठीक है, ईच एंड एवरी सेल शो डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं on the basis of number of cell, there are two kinds of living organisms. Okay, like unicellular and multicellular. Okay, unicellular living organism are also known as single celled organism. They consist single cell, one cell in their body organization. Okay, second, multi-cellular organisms. Okay, higher organisms like higher plants and higher animals, they consist of many cells in their body organization. Okay, and on the basis of many cells they are known as multicellular living organisms. Okay, तो आप समझे कि there are two kinds of living organisms, unicellular and multicellular. ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल. हु डिस्कवर्ड सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1665 one scientist, that's name was Robert Hooke. He discovered dead cells in the
bark of orchid tree. Okay, when he was observing bark of tree under the microscope, then he obtained honeycomb-like structures. And he gave name to each chamber as a celluli. Celluli is a Latin word that means cell. ठीक है, समझे आप? First of all, Robert Hooke named scientist discovered that cells, okay, in the bark of orchid tree. Okay, once he was observing the bark of orchid tree under the microscope. Okay, then he observed honeycomb like structures. ठीक है, तो उसने किस तरह की स्ट्रक्चर देखी? honeycomb like structures. Okay, and he gave name to each chamber or each compartment as a celluli. ठीक है, हर चैम्बर को क्या नाम दिया बेटा उसने? celluli. celluli is a Latin word that means cell. तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो डेड सेल्स की डिस्कवरी की है बेटा वो किन्होंने की है? रॉबर्ट हुक ने. ओके, अब हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल डिस्कवरी की. ठीक है, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? एक साइंटिस्ट है बेटा, दैट्स नेम वाज एन वॉन Leeuwenhoek. He discovered living cell in 1674. ठीक है, जो एंटवन ल्यूवेनहुक है बेटा, he was father of microbiology. ठीक है, you know very well, microbiology is a special branch of science in which we study about microbes like bacteria, फंगी, एल्गी, वायरस. ठीक है, कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं ना? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज एंटवन ल्यूवेनहुक. ओके, एंड ही आल्सो डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स. ठीक है, ये भी आपको समझना है. ओके, पहले तो समझे कि जो एंटवन ल्यूवेनहुक थे बेटा, ही वाज डच मर्चेंट. ठीक है, उनकी हॉबीज थी हर किसी चीज को देखना अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, वंस ही वाज ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इनटू द माइक्रोस्कोप. ठीक है, इन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, जब वो पॉन्ड वाटर को देख रहे थे, देन ही ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स हैं. ओके, एंड दीज माइक्रोब्स आर मूविंग हियर एंड देयर. ठीक है, तब उन्होंने बताया कि दीज ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स हैं तभी वो मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं. ठीक है, तो बोल दिया कि सबसे पहले जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की है बेटा वो किन्होंने की है? एंटवन ल्यूवेनहुक ने. ओके, समझे आप इस चीज को. अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल and second is eukaryotic cell. Prokaryotic cell occurs in prokaryotes. Okay, and you should know that prokaryotic term is made up of 2 words, pro plus karyon. Here pro means primitive and karyon means nucleus. Okay, prokaryotic cell does not consist well developed nucleus and well developed cell organelles. Okay, it consists primitive type of nucleus. ठीक है, तो आप समझें
कि जो प्रोडक्ट सेल्स होती है बेटा उसके अंदर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो साइज होता है इसका बेटा लेस देन 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो साइज है इस सेल का वो कितना होगा, लेस देन 10 माइक्रोमीटर। और आप समझो बेटा माइक्रोमीटर एक यूनिट है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। माइक्रोमीटर कैसे, देखो आप समझे कि जो 1 सेंटीमीटर होता है इट हैज 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या बेटा एक जो मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1/10 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर यानी कि 1000 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो देख लें, समझे आपको 1 सेंटीमीटर का कितना है 10 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट वो क्या बनाता है माइक्रोमीटर, ठीक है। वी मेजर द साइज ऑफ सेल बाय द हेल्प ऑफ ए यूनिट दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। मैंने बताया भी आपको कि जो साइज है प्रिमिटिव सेल का, सॉरी प्रोबैटिक सेल्स का, वो क्या बेटा लेस देन 10 माइक्रोमीटर, ओके। फिर क्या होता है बेटा इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है। मतलब एक ही सेल होता है इसके अंदर अनमेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। नाम क्या इसका राइबोसोम, और राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन मशीनरी मॉलिक्यूल, ओके। इट प्रोवाइड सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। तो आप समझे ये प्रोडक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और मेनली बड़ा जो प्रोडक्ट सेल्स होती है ना वो होगी आपके लोअर एनिमल्स के अंदर, लोअर ऑर्गेनिम्स के अंदर, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ओके। दे कंसिस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल्स की, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो स्ट्रक्चर बेटा इट इज टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल है बेटा, इसमें एक होता है बेटा 3 थ्रेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलम। बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम बैक्टीरिया शो लोकोमोशन, ओके। जेनेटिक मटेरियल, अच्छा एक बात आप और सुने, बात थी अपने कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट ईच एंड एवरी सेल कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल, ओके। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही फंक्शन, वही मतलब प्रोटीन बनाने में, ठीक है। और जो अलग फंक्शंस होते हैं, जो अलग जो एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, ठीक है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। आपको ये भी समझना है, ठीक है, कि हर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरियल सेल है ये रख तो क्या नहीं बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए freely occurs in a cytoplasm. Cytoplasm is a fluid that occurs in a cell, okay. This genetic material is known as chromosomal DNA or nucleoid, okay. Unmembrane bound cell organelles that is called ribosome. Inner membrane layer of bacterial cell folds and form folding structure that is called mesosome. Mesosome consists of different kinds of enzymes that help in different chemical reactions, okay. फिर हम बात करेंगे जो बैक्टीरियल सेल्स होती है बेटा इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स,
नंबर सेकंड सेल वॉल और नंबर थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डीपली पढ़ाएंगे आपको, बेटा जब सेल के स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको मैं। अभी आपको जनरली मैंने बताया, ठीक है, तो इसके बारे में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है, बताया था आपको मैंने कि देयर आर सम प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट कंसिस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, और मेन मेरा मकसद था समझाने का आपको भी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे डू नॉट कंसिस्ट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तब मैंने स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, फिर थोड़ा समझ लीजिए कि अब इसके बारे में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, है ना, इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। जो आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर इज नोन एज सेल वॉल, इनर लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको नाम देंगे साइटोप्लाज्म का। जेनेटिक मटेरियल फ्रीली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अनमेम्ब्रेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स अकर्स, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, और जो इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड मेसोसोम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल अकर्स इन अ हायर प्लांट्स एंड हायर organisms. Okay, some lower plants and animals also consist eukaryotic cells in their body organization. Okay, eukaryotic term is also made up of 2 words, eu plus karyon. Eu means well developed and karyon means nucleus. Okay, eukaryotic cell consists well developed nucleus and well developed cell organelles like Golgi body, mitochondria, endoplasmic reticulum etc. ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जो साइज होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, इट इज मोर मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज था लेस देन 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका साइज क्या होगा बेटा, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये साइज है, बड़ा भी हो सकता है, ये तो मैंने जनरली आपको बताया है। ठीक है, इतना मिडिल साइज मतलब साइज होता है इसका यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये 2 सेल्स हैं। अब मेनली ये आपको जानना है कि जो सेल होती है ना, ईच एंड एवरी सेल हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, अलग अलग तरह की सेल्स हम तरह की अलग अलग साइज रखती हैं और शेप रखती है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले आरबीसी की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैव बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर्स। ओके, WBC has irregular shape structure. Long elongated shape। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल आपको देना बता, ये जो है ये नर्व सेल। ठीक है, फैट सेल्स है जो राउंड शेप होती है बेटा। ठीक है,
कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, कोई एपिथेलियल सेल्स है बेटा, ठीक है, जो कॉलम शेप होती है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं mesophyll cells that occurs in a plant leaves, okay, mesophyll cells है, तो कहां पर जोड़ रहे हैं, लीव्स के अंदर। ये है राउंड ओवल शेप्ड, ठीक है। पेट्स, ट्रैकिड्स, ठीक है बेटा। अब जो ट्रैकिड्स है ना, ट्रैकिड्स इज ए टाइप ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू अकर्स इन अ प्लांट रूट्स, ओके, एंड इट प्रोवाइड्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स इनटू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू का जो पार्ट है, जो टाइप है, वो क्या है बेटा, ट्रैकिड्स, ठीक है। अब जो ट्रैकिड्स की सेल्स होती है, क्या होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड होती है, ठीक है। तो बता भी आपको मैंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। बता दिया आपको मैंने कि अलग अलग शेप के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइज की, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है बेटा, ठीक है, दैट इज स्पर्म। स्पर्म क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। जो सबसे लॉन्ग सेल है बेटा हमारे अंदर, वो कौन सी है, नर्व सेल, ठीक है। लॉन्ग सेल के अंदर आएगी बेटा ये। अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है, कि सबसे छोटी जो सेल है जिसका साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है, वो है बेटा माइकोप्लाज्म, ठीक है, जो बिलोंग करता है बेटा प्रोकैरियोट, ठीक है। ये प्रोकैरियोट है माइकोप्लाज्म, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो इसका साइज कितना सेल का बेटा, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस की जो आरबीसी है, ठीक है, उसका साइज कितना है, 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये भी आप समझे, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि एनिमल्स के केस में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा, माइकोप्लाज्म, ठीक है। और सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल है, वो है बेटा ऑयस्ट्रिच एग, ठीक है, 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एनिमल्स के केस की बात है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, ये बेटा एसिटा बुलेरिया, ठीक है। एक रेसिमर फाइबर्स हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनका भी साइज मतलब वो भी लॉन्ग सेल रखते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन प्लांट्स एसिटा बुलेरिया, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, और रेसिमर फाइबर्स, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल इन प्लांट, duckweeds that belong to genus वोल्फिया। ठीक है, सबसे छोटी जो प्लांट सेल है बेटा वो किसमें है? डकवीड्स के अंदर। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डकवीड्स है जिसका जीनस कौन सा होता है? वोल्फिया। ठीक है, अब समझिए लार्जेस्ट सेल प्लांट्स और स्मॉलेस्ट सेल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अभी जो बताया आपको मैंने, देखो जो हमारा चैप्टर था ना वो सेल था बेटा। ठीक है, मैंने आपको बता दी सेल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल्स बता दिया आपको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, शॉर्ट पता है अभी। ठीक है, डीपली स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, फिर बताया आपको मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनी एंड मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ एक कैरेक्टर्स बताए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, फिर मेन बताया आपको मैंने शेप ऑफ सेल। ठीक है, अलग अलग शेप्स होती है बेटा सेल की। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको साइज के बारे में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट सेल साइज। ठीक है, उन सबका अलग अलग साइज होता है। ठीक है, अब हम सेल्स का जो है बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।